Assalamu alaikum, student. Today we trying to discuss the mean value theorem. Let's suppose, and we interpret this is graphically the mean value theorem. So let f be a function that satisfies the following hypothesis. Number first, f is continuous on the closed interval ab, and the same function f is differentiable on the open interval ab. Then there exists a number c in this interval, this open interval, such that derivative at that point is equal to f of b minus f of a divided by b minus a. This means that we put the endpoint, this one, in the function f, and then this endpoint, and this is the quotient. So, if you remember your recall your previous studies and previous lectures, then this is the slope of secant line, and this is the derivative at a point, so this represent the tangent line. This expression we can also write as f of b minus f of a. Just multiply this term here, so this will be f of b minus f of a is equal to prime of c and b minus a. So this geometrically represent that the if there is exist a point in the interval a b, there exists a point p, that is this point in the interval a b, at which the slope of tangent line and the slope of secant line, because this represents the secant line, are equal. तो ये इसका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन है, और वी कैन से दैट हम इस तरह भी कह सकते हैं कि इस इंटरवल के दरमियान, इन दिस ओपन इंटरवल, दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट दैट, ये इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट करता है? दिस रिप्रेजेंट दैट कि इस इंटरवल में स्लोप ऑफ secant line, this is the slope of secant line, and this is the slope of tangent line. इस इंटरवल में इस एक पॉइंट इस तरह, कम से कम एक पॉइंट इस तरह होगा जिस पे स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन और स्लोप ऑफ सेकंड लाइन एक दूसरे को पैरेलल होंगे। कम से कम एक पॉइंट इस तरह। एक से ज़्यादा पॉइंट भी हो सकते हैं। आप यहाँ से ए से लेकर बी तक इस इंटरवल के अंदर देख लें तो यहाँ पे ये जो सेकंड लाइन आपके पास बन रहा है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, ए से लेकर बी तक। So this secant line is parallel to this tangent line at a point P1 and at a point C1, which lies between the interval A and B. And this is again, this is a point P, P2, and this is the slope of tangent line. This is parallel to this the slope of secant line. So कम से कम एक ही पॉइंट जरूर होना चाहिए, एक ही पॉइंट इस तरह होगा जिस पे ये दोनों स्लोप सेम होंगे और पैरेलल होंगे। So this is the geometrical interpretation of the mean value theorem. Mean value theorem को shortly हम MVT भी कह सकते हैं, MVT, mean value theorem. For example, this is some question from the exercise. Verify that the function satisfy the hypothesis of mean value theorem on the given interval. Then find all the number c that satisfy the conclusion of the mean value theorem. So let's consider the first example. The function is given, the interval is also given. So you have, first you have to satisfy the all the hypotheses of the mean value theorem, and then you can find the point where the slope of tangent line and the slope of secant line are equal. So solution, f of x is equal to 2x square minus 3x plus 1, and the given interval is indicated as 0 to 2. So hypothesis 1, this function must be continuous in the closed interval. This is the hypothesis 1. So since here this is the polynomial, and we know about the polynomial, that we study about the polynomial, and we study the theorem about the polynomial, that every polynomial is continuous in
because polynomials, so polynomial are continuous everywhere. So this means that this is a polynomial which is continuous and 0 to 2 in this interval. Second hypothesis is that f is also differentiable in the open interval because polynomial जो होते हैं ना वो सारे हर जगह पे डिफरेंशिएबल होते हैं. सो इसलिए ये ओपन इंटरवल में भी फंक्शन डिफरेंशिएबल है. Then, according to mean value theorem (MVT), there is a number C in this interval 0 to 2. इसके दरमियान एक इंटरवल एक पॉइंट इस तरह होना चाहिए such that f of 2 minus f of 0 is equal to f prime of C and 2 minus 0. ये जनरल फॉर्म मैंने ले लिया है इसका मीन वैल्यू थ्योरम का जो जनरल सेकंड इक्वेशन है वो मैंने ले लिया. सो यहाँ पे ए की जगह हमारे पास 0 है, बी की जगह हमारे पास 2 है. सो एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए इज इक्वल टू ए प्राइम ऑफ सी एंड टू बी माइनस ए. सो इसमें हमने जस्ट पुटिंग की है. Now find, this is the equation 1. Now find the value of f of 2. So just put x is equal to 2 and this function. So we get 3, and when we insert x is equal to 0 in this function, this will gives 1. And now taking the, because here we have to take the derivative and then put x is equal to c. So take the derivative of this function. So the derivative of this function equal to 4 of x, and this is minus 3. So this is 4 of x, and this is the derivative of minus 3x is minus 3. So put x is equal to c because we need derivative of f at x is equal to c. So insert uh, x is equal to c. So this is 4c minus 3. Now using these values, these equation 2, 3, and 4 in this equation. So just putting the values f of 2, f of 0, f prime 2 minus 0. So we can write this equation this in 3 minus 1 because the value of f of 2 is 3 and the value of f of 0 is 1. So this is equal to 3 and minus 1, and the value of f prime at c, which is equal to 4c minus 3. So we can write as, and this is 2 minus 0, so we can write it, this is 2. Now simplify this. This is cancel out and simplify this, so you get the value which is equal to 3 by 4. So 3 by 4 is basically belong to this interval. So 3 by 4 is the point in this open interval at which the slope of tangent line is equal to the slope of secant line. So this is the point. This is the point C at which the slope of secant line and tangent line are parallel. Now, the question is, what does f say about f? इसका मतलब ये है कि आप फंक्शन का डेरिवेटिव ले लें तो वो f के बारे में कोई इंफॉर्मेशन दे सकता है कि नहीं दे सकता, और वो क्या इंफॉर्मेशन दे सकता है. फॉर एग्जांपल, जिस तरह ये हमारे पास एक फंक्शन है a से लेकर b तक, फिर a से लेकर c तक, c से लेकर d तक, ये डिफरेंट पॉइंट भी हमने डिवाइड किया हुआ है. तो यहाँ पे अगर आप इसको देख लें, एक एक पॉइंट पे टेंजेंट लाइन ड्रा करें तो ये टेंजेंट लाइन, ये टेंजेंट लाइन, ये टेंजेंट लाइन, फिर टेंजेंट लाइन इस तरह बन रहा है, फिर यूं बन रहा है, फिर यूं बन रहा है, फिर यूं बन रहा है. तो क्या हमें डेरिवेटिव से पता चल सकता है कि ये फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है? इसका स्लोप देखें ना, इसका स्लोप इंक्रीज हो रहा है. ठीक है, ए से लेकर बी तक, ये इसी पॉइंट के दरमियान इसका स्लोप जो है वो इंक्रीज हो रहा है. फिर बी से सी तक इसका स्लोप डाउन हो रहा है, तो ये डिक्रीज हो रहा है स्लोप, यहाँ से इधर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. सो जब यहाँ से यहाँ तक हम जाते हैं ना तो स्लोप इंक्रीज होता नजर आ रहा है, फिर यहाँ इसके बाद स्लोप डिक्रीज हो रहा है, फिर इसके बाद स्लोप अगेन इंक्रीज होना शुरू हो जाता है. सो इसके डेरिवेटिव से हम, इसकी जो स्लोप है, डेरिवेटिव इज बेसिकली रिप्रेजेंट स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन एट अ पॉइंट. सो इसके डेरिवेटिव से हमें ये इंफॉर्मेशन मिल सकता है कि ये फंक्शन किस इंटरवल में इंक्रीजिंग है, कहाँ भी डिक्रीजिंग है. सो इसको कहते हैं इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग टेस्ट. ठीक है, सो डेरिवेटिव हमें बता सकता है फंक्शन के बारे में कि फंक्शन, हाँ यस, ये बताता है कि फंक्शन
कहाँ पे इंक्रीजिंग है और कहाँ पे डिक्रीजिंग है। सो डेरिवेटिव हमें ये इंफॉर्मेशन बता सकता है, जो कि हम इसको डिफाइन कर रहे हैं in the form of increasing and decreasing test. So if derivative is greater than zero, this means that if derivative is positive on the interval, then f is increasing on that interval. पहले हमने इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का चेक किया था कि फंक्शन कैसे इंक्रीज होता है कैसे डिक्रीज होता है, जो कि स्टार्ट में पिछले चैप्टर 2 में हमने किया था। लेकिन यहाँ पे हम वहाँ पे सिर्फ हम एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ एक्स 1 एफ ऑफ एक्स 2 के थ्रू हमने किया था। f(x1) is greater than f(x1), f(x1) is less than x2, तो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। तो अब हम डेरिवेटिव से देखते हैं, वो तरीका है कि किस इंटरवल में इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है। अब ये डेरिवेटिव से हम चेक करते हैं कि फंक्शन, अगर फंक्शन का डेरिवेटिव पॉजिटिव है किसी इंटरवल में, देन f is increasing on that interval. यहाँ पे डेफिनेटली द स्लोप इज पॉजिटिव, ठीक है, यहाँ पे स्लोप पॉजिटिव है, यहाँ पे डेरिवेटिव द फंक्शन इंक्रीजिंग। यहाँ पे स्लोप क्या, एक ग्राफ से पता चल जाता है कि ये डिक्रीज हो रहा है, नीचे आ रहा है ग्राफ, यहाँ से वैल्यू से नीचे आ रहा है, तो दिस इज द फंक्शन इज डिक्रीजिंग इन दिस इंटरवल बी और सी के दरमियान, दिस इज डिक्रीजिंग। तो इसका क्या मतलब है, स्लोप इज नेगेटिव इन दिस फॉर्म। So if derivative is negative or the slope is negative is less than zero, means this is negative on the interval, then f is decreasing on that interval. और यहाँ पे आप फिर देख सकते हैं कि फिर बढ़ना शुरू हो गया, इंक्रीज होना शुरू हो गया। So here the derivative is greater than zero, so this function is decreasing. So derivative हमें एक फंक्शन के बारे में ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकता है कि फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। For example, find where the function this one as increasing and where it decreasing. So solution. So we start by differentiation. So you have to first take the derivative of this function. So derivative of this function is 12x cube आ जाएगा, and this is minus ये 3 इधर आ जाएगा, so this will be equal to 12, and एक पावर रिड्यूस हो जाएगा तो ये स्क्वायर आ जाएगा, and minus as it is, and then the derivative of this is 24x आ जाएगा, और ये constant है, so the derivative of constant is equal to 0. Now you can take common here, 12x is common from this expression, so 12x, and this will be x square, this is minus x, ठीक है, and this is minus 2 because you take the common 12x. So now we can factorize this term, so 12x as it is, and factorize this one, we get x minus 2 and 2x plus 2. So इसको आप factorize कर सकते हैं, and by this simple equation है, इसको factorize कर ले, so this will be x minus 2 and x plus 1. Now derivative, this is f prime of x is equal to 0, इस derivative को equal to 0 पुट कर लें। जब इसको equal to 0 पुट कर लें, so this will be equal to, this expression will be equal to 0, and from here x is equal to 0, x minus 2 is equal to 0, so x is equal to 2, and x plus 1 is equal to 0, so x is equal to minus 1. तो ये तीन वैल्यूज हमारे पास आ जाते हैं। दिस मीन दैट कि ये जो तीन वैल्यूज हैं, ये पूरा जो इंटरवल है ना, ये तीन पॉइंट्स पे हमें डिवाइड कर देता है, ठीक है। x 0 है, दिस इज -1 एंड दिस इज 2, so this means that x is less than -1, we can write x is less than -1। इस इंटरवल को आप लिख सकते हैं, इस इंटरवल को आप लिख सकते हैं कि x is less than 0 and greater than -1, और सिमिलरली ये जो इंटरवल है, यहाँ से इसको आप लिख सकते हैं x is less than 2 and greater than 0, और सिमिलरली ये जो इंटरवल है, इसको आप लिख सकते हैं x is greater than 2, या इसको हम लिख सकते हैं, इसको नोटेशन के फॉर्म में लिखना चाहें, सो 0 to 2 लिख सकते हैं इस इंटरवल को, और इसको कैसे लिख सकते हैं, 2 to infinity, 2 to positive infinity,
ठीक है। सो दिस इज 2 पॉजिटिव, क्योंकि x इज ग्रेटर देन 2 मीन दैट 2 से ऑनवर्ड, तो 2 से ऑनवर्ड ये क्या है, दिस इज इन्फिनिटी। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे दिस इज माइनस इन्फिनिटी। सो इसको हम लिख सकते हैं माइनस इन्फिनिटी टू -1, और इसको लिख सकते हैं हम -1 to 0। सो ये हमारे पास इंटरवल्स आ गए इस क्रिटिकल पॉइंट के करिस्पॉन्ड। यहाँ पे हमने क्रिटिकल पॉइंट मालूम किया, x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 2 एंड x इक्वल टू -1। सो अब ये हमारे पास इंटरवल बन गए, ये एक इंटरवल ये है, एक इंटरवल ये बन गया, ये 4 इंटरवल बन गए। तो अब इस इंटरवल का एनालिसिस करना है हमने। ये इक्वेशन, दिस इज डेरिवेटिव टू 12x x minus 2 x plus 1। तो ये इंटरवल है, x इज लेस देन -2, या इसको हम लिख सकते हैं इसी फॉर्म में जो कि मैंने डिस्कस कर लिया कि -∞ to -1। इसको लिख सकते हैं, दिस इज ओपन इंटरवल, यहाँ पे ग्रेटर नहीं है। सो -1 to 0, सो ये -1 to 0 इसको लिख सकते हैं। 0 to 2 इसको इसी फॉर्म में लिख सकते हैं, या x इज ग्रेटर देन 2, इसका क्या मतलब है, 2 to infinity। ठीक है। तो अब हमने देखना है, ये 12x इधर मैंने लिख लिया, ठीक है, एंड दिस इज x -2 इधर लिख लें, और ये लिख लें आप यहाँ पे आपके पास x+2 x+1, और यहाँ पे डेरिवेटिव ले लें। अब देखिए x इज लेस देन -1, -1 से लेस, -1 से लेस सारे नेगेटिव नंबर है। जब यहाँ पे पुट कर ले x की जगह नेगेटिव नंबर, तो ये नेगेटिव रहेगा। जब यहाँ पे नेगेटिव पुट कर ले -1 से लेस, तो -1 माइनस, लेट सपोज आप -2 पुट कर ले, तो -2 एंड -2, सो -4। सो ओवरऑल दिस फैक्टर एज -4 माइनस। यहाँ पे आप नेगेटिव पुट कर लें लेस देन -1, -1 से लेस पुट कर लें, तो अब लेट सपोज -2 पुट कर ले, तो -2 + 1, तो माइनस आ जाएगा, या -1.5 पुट कर ले, तो -1.5 एंड 1, सो दिस इज -0.5। सो इसका रिजल्ट क्या है ओवरऑल इन दिस इंटरवल, इसका ओवरऑल रिजल्ट ही माइनस है। अब ये मल्टीप्लिकेशन में है तीनों, दिस इज 12x एंड 2 x -2 एंड 2x + 1। तो तीनों को मल्टीप्लाई करें, प्लस माइनस माइनस प्लस हो गया, एंड प्लस मल्टीप्लाइड विद माइनस, so this is equal to minus। So the sign of the derivative of this function is negative in this interval f in minus infinity to -1, or x is less than -1। so ये नेगेटिव है, तो इसका क्या मतलब है कि derivative in this interval is negative, so this means that the function is decreasing on this interval। अगर पॉजिटिव है तो इंक्रीजिंग है। अच्छा, इस इंटरवल में -1 to 0, -1 to 0, 0 -1 के दरमियान ये नेगेटिव नंबर है, ठीक है। सो इसमें आप नेगेटिव पुट कर ले तो ये नेगेटिव आ जाएगा, इसमें नेगेटिव पुट कर ले 0 और -1 के दरमियान, तो ये नेगेटिव आ जाएगा। इसमें 0 और -1 के दरमियान पुट कर ले, 0 -1 के दरमियान, ठीक है। लेट्स सपोज मैं 0.9 पुट करता हूँ, सो 0 -0.9 एंड +1, तो उसका ओवरऑल रिजल्ट इस इंटरवल में -1 से लेकर 0 तक कोई भी पॉइंट आप पुट कर लें, -1 और 0 के अलावा, क्योंकि ये शामिल नहीं है, कोई भी पॉइंट आप पुट कर ले इसमें, तो इसका ओवरऑल रिजल्ट क्या आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा पॉजिटिव। अब इसको मल्टीप्लाई करें, माइनस क्यों मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन में है ना सारे, और हम इसका साइन चेक कर रहे हैं कि इसका साइन पॉजिटिव आ रहा है नेगेटिव आ रहा है, इसकी बेस पे हम इंक्रीजिंग, अगर पॉजिटिव आ रहा है तो ये इंक्रीजिंग है इस इंटरवल में, अगर नेगेटिव आ रहा है तो फिर ये डिक्रीजिंग है। सो माइनस इनटू माइनस, दिस इज पॉजिटिव, एंड प्लस इनटू प्लस इज पॉजिटिव, so overall is positive, so the function is increasing in this interval because f prime is by the increasing decreasing test, f prime is positive, so this function is increasing on the interval -∞ to 0, -1 to 0। Now check the behavior of this function in the interval 0 to 2। so 0 2 के दरम्यान कोई भी वैल्यू पुट कर ले तो ये पॉजिटिव रहेगा, चेक कर सकते हैं आप। 1 पुट कर ले, सो 12 इज पॉजिटिव। एंड अच्छा, इसमें पुट कर लें
इसमें 0 और 2 के दरमियान पुट कर लें। 0 to 2 के दरमियान पुट कर ले तो ये नेगेटिव आ जाएगा। लेट्स सपोज मैं 1.5 पुट करता हूँ या 1 पुट कर लें तो ये नेगेटिव। 1 - 2 इज नेगेटिव। सो ओवरऑल इस इंटरवल में ये नेगेटिव है। इस इंटरवल में पुट कर ले 0 to 2 तो ये पॉजिटिव आएगा। तो माइनस प्लस विद मल्टीप्लाई विद माइनस इज माइनस एंड माइनस विद मल्टीप्लाई विद प्लस, सो दिस इज माइनस। सो इसका रिजल्ट माइनस आएगा। दिस मीन दैट the derivative in this interval is negative, so the function is decreasing in this interval. Similarly, for x is greater than 2, x is greater than 2 कोई भी पॉइंट आप पुट कर ले, so this is positive, greater than 2 3 पुट कर ले, 3 - 2 is positive, so इसमें पुट कर ले तो पॉजिटिव रहेगा। सो ओवरऑल इसको मल्टीप्लाई कर ले तो पॉजिटिव 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 इज इक्वल टू पॉजिटिव। सो द फंक्शन इज इंक्रीजिंग इन दिस इंटरवल। और यहाँ से आप फिगर इसका फंक्शन का ग्राफ है, ये नॉट डेरिवेटिव। फंक्शन का ग्राफ यहाँ से देख सकते हैं कि ये देखिए दिस इज -1 है, दिस इज -1 है, दिस इज 1 एंड दिस इज 2 एंड दिस इज 3 एंड दिस इज 0। सो ये आप देख सकते हैं, इसका स्लोप देख लेना, स्लोप इसका डिक्रीज हो रहा है। इसका स्लोप जो है वो नीचे आ रहा है, देखिए। सो इस एक्स इज लेस देन माइनस इन्फिनिटी, यहाँ से जब इस तरफ मूव करते हैं ना तो इसका स्लोप नीचे आ रहा है, ठीक है। -इन्फिनिटी टू 1 की तरफ हम मूव करते हैं ना इस इंटरवल में, तो ये स्लोप नीचे आ रहा है, तो इसमें फंक्शन डिक्रीजिंग है, नीचे आ रहा है ग्राफ। फिर इसके बाद -1 to 0 0, दिस इज 0 एंड दिस इज -1, इसके दरमियान ये इंक्रीज हो रहा है, ग्राफ ऊपर जा रहा है, देखिए इसका स्लोप इंक्रीज हो रहा है। फिर 0 के बाद 0 to 2, 0 और 2 के दरमियान फिर ये फंक्शन ये देखें ना, ये क्या हो रहा है, डिक्रीजिंग हो रहा है यहाँ पे 0 2 के दरमियान। फिर 2 और इन्फिनिटी के दरमियान आगे आगे इस तरफ जब 2 और इन्फिनिटी के इंटरवल में, फिर यहाँ से इसके बाद जो है फंक्शन दोबारा इंक्रीज होना शुरू हो गया। सो द फंक्शन इज इंक्रीजिंग इन दिस इंटरवल। तो कोई भी फंक्शन आप इस तरह टेबल बना के, पहले इसका तरीका, सिंपल तरीका ये है कि आप फंक्शन का डेरिवेटिव ले लें, इसका इक्वल टू 0 पुट कर ले, क्रिटिकल पॉइंट इससे मालूम कर लें। ये क्रिटिकल जो पॉइंट है ये आपके इंटरवल डिवाइड कर लेगा। जिस तरह इस ये 3 पॉइंट है तो इस इंटरवल को उसने 4 हिस्सों में डिवाइड कर ले। एक ये पॉइंट है, एक ये इंटरवल है, एक ये इंटरवल है। अगर 2 पॉइंट है तो ये 3 हिस्सों में डिवाइड कर लेगा। तो ये इंटरवल जो है हमारे पास इस क्रिटिकल पॉइंट को के रिस्पॉन्ड आ जाएगा। फिर आप इस तरह इंटरवल बना लें और इस फंक्शन को देख लें कि इस इंटरवल में फंक्शन का 1-2 पॉइंट पे चेक कर ले कि कहाँ ये नेगेटिव आ रहा है कि पॉजिटिव आ रहा है। तो इससे फिर इसका साइन मालूम करें इस इंटरवल में कि इसी इंटरवल में डेरिवेटिव का साइन पॉजिटिव है तो इंक्रीजिंग है, नेगेटिव है सो द फंक्शन इज डिक्रीजिंग इन दैट स्पेसिफिक इंटरवल। नाउ local extreme values. Recall from section 4.1 that if f has a local maximum or minimum at a point C, then C must be a critical number of f by Fermat's theorem. By Fermat's theorem. फॉर्मेट थ्योरम क्या कह रहा है, अगर आपके पास एक फंक्शन है, इसके एक पॉइंट पे लोकल मैक्सिमम है या लोकल मिनिमम है, तो वो गारंटी देते हैं कि सी एज दी मस्ट बी द क्रिटिकल नंबर। इस फंक्शन का जो जिस पॉइंट पे लोकल मैक्सिमम है या लोकल मिनिमम है, तो वो पॉइंट, दिस पॉइंट मस्ट बी क्रिटिकल नंबर ऑफ दैट फंक्शन। लेकिन ये ज़रूरी नहीं था, इसका कन्वर्स ट्रू नहीं था। कन्वर्स में ये नहीं था, बट नॉट एवरी क्रिटिकल नंबर गिव राइज टू अ मैक्सिमम और मिनिमम। तो हर एक क्रिटिकल नंबर ज़रूरी नहीं कि वो हमें मैक्सिमम और मिनिमम दे दे, ठीक है। अगर लोकल मैक्सिमम मिनिमम है सो दैट मस्ट बी क्रिटिकल नंबर ऑफ दैट फंक्शन, बट द कन्वर्स इज नॉट ट्रू, ठीक है। So we therefore need to test that will tell us whether or not f has local maximum or minimum at a critical number. तो अब इसके रिवर्स हम चेक करते हैं एक टेस्ट से, जो कि फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट है। इससे हम चेक करते हैं कि इस फंक्शन की जो क्रिटिकल नंबर है ये लोकल मैक्सिमम मिनिमम हो सकते हैं कि नहीं हो सकते, उसको कैसे चेक करते हैं। So suppose that the first derivative test, suppose that c is a critical number of a continuous function f. Number first, if prime change from positive to negative at c, where c is the critical number, आप critical number पहले मालूम कर ले, डेरिवेटिव लेके फंक्शन का इक्वल टू 0 पुट कर ले, आपके पास क्रिटिकल नंबर आ जाएंगे।
So f prime if derivative of a function changes from positive to negative, let's see, अगर derivative आपके पास positive to negative sign change कर ले, then f has local maximum at that point, mean from positive to negative, ठीक है. So the function has a local maximum at a point c. F this function derivative of a function changes from negative to positive at point c, then f has a local minimum at c. Or third number case, if f is positive to left or right at c or negative to left and right at c, then f has no local maximum or minimum value at c. अगर दोनों साइड से ये सी पॉइंट पे आपके पास क्रिटिकल पॉइंट पे दोनों लेफ्ट और राइट आप ले ले कोई भी वैल्यू, तो वो नेगेटिव पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो इसका मतलब ये है कि इसका मैक्सिमम मैक्सिमम मिनिमम लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम नहीं है. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप देख लें तो इसी पॉइंट पे यहाँ पे स्लोप क्या है, यहाँ पे ये स्लोप क्या हो रहा है, दिस स्लोप इज पॉजिटिव इंक्रीजिंग है ना, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव पॉजिटिव है इंक्रीजिंग है, स्लोप इंक्रीज हो रहा है. फिर क्या हो रहा है, यहाँ पे स्लोप डिक्रीज हो रहा है. सो दिस इज डेरिवेटिव इज पॉजिटिव हियर, और यहाँ पे डेरिवेटिव क्या है, स्लोप है विच इज नेगेटिव क्योंकि डिक्रीज हो रहा है. सो यहाँ पे क्या, इस पॉइंट पे क्या बनेगा, दिस इज अ क्रिटिकल पॉइंट, यहाँ पे साइन पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ चेंज हो गया. When f prime changes sign from positive to negative, then this at x equal to c, the function has a local maximum value. So this is the maximum value. इस केस में यहाँ पे क्या हो रहा है, फंक्शन द स्लोप इज नेगेटिव क्योंकि ग्राफ नीचे आ रहा है इसकी तरफ, but derivative is negative. So यहाँ पे क्या हो रहा है, slope is positive. So sign changes from negative to what, to positive, negative to positive. So जब negative to positive f प्राइम का साइन चेंज हो जाए, so इसको कहते हैं लोकल मिनिमम. और इस केस में देखें लोकल मैक्सिमम मिनिमम नहीं है. देखें यहाँ पे डेरिवेटिव पॉजिटिव है, ठीक है, इस तरफ जा रहा है तो स्लोप इंक्रीज हो रहा है. फिर अगेन ये क्रिटिकल पॉइंट है जहाँ पे डेरिवेटिव जीरो है. क्रिटिकल पॉइंट वो पॉइंट होता है जिस पर डेरिवेटिव जीरो, यहाँ भी डेरिवेटिव जीरो है, यहाँ भी डेरिवेटिव जीरो है. इस पे डेरिवेटिव जीरो या अनडिफाइन हो इसको क्रिटिकल पॉइंट कहते हैं. सो यहाँ भी डेरिवेटिव जीरो है, लेकिन इसके बाद फिर क्या शुरू हो गया, फिर अगेन स्लोप इज पॉजिटिव क्योंकि ऊपर जा रहा है ना ग्राफ इसका, तो यहाँ भी स्लोप पॉजिटिव है, यहाँ भी स्लोप पॉजिटिव है. सो सी की लेफ्ट और राइट, सी दिस इज द क्रिटिकल पॉइंट, सी के लेफ्ट और राइट साइड पे अगर साइन चेंज हो रहा है, ठीक है, तो ये अगर पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ है तो ये लोकल मैक्सिमम है, अगर नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ है तो ये लोकल मिनिमम है. अगर पॉजिटिव टू पॉजिटिव है, लेफ्ट पॉजिटिव है राइट भी पॉजिटिव है, स्लोप पॉजिटिव है, तो ये नो मैक्सिमा मिनिमा. या यहाँ पे देखिए ना, यहाँ पे लेफ्ट नेगेटिव है नीचे आ रहा है, सो द डेरिवेटिव इज नेगेटिव, दिस इज द क्रिटिकल पॉइंट. इसके राइट साइड पे देख ले, क्रिटिकल पॉइंट के राइट साइड पे देख ले, so again the derivative is negative. So यहाँ पे भी negative, from negative to negative, so we can not conclude any result. ये इसकी कोई maximum minimum नहीं है, ठीक है. For example, find the local minimum and maximum value of a function f in the example. So इसमें maximum and minimum value मालूम करें. ये वही example वन है, that is this one. So आपने क्या करना है, पहले we start by differentiation. So इसको differentiate कर लें, डेरिवेटिव ले लेते हमारे पास ये आ जाएगा, इस फंक्शन का डेरिवेटिव ले लें. सो दिस विल बी 12x क्यूब एंड माइनस 12x स्क्वायर आ जाएगा, और इसका डेरिवेटिव आ गया -24, और इसका कांस्टेंट जिस तरह पिछले एग्जांपल में हमने कैलकुलेट किया हुआ है. नाउ यहाँ से 12x कॉमन ले लें, सो ये आ जाएगा हमारे पास, जो कि पिछले एग्जांपल में हमने सारे डिस्कस किया हुआ है. ये 12x आ जाएगा, ये x माइनस, इसको फैक्टराइज कर ले, x-2 और x+1 आ जाएगा. फिर ए प्राइम जीरो पुट कर ले तो हमारे पास ये आ जाएगा इसी फॉर्म में. तो यहाँ पे x इज इक्वल टू 0, x-2, x इज इक्वल टू 2 आ जाएगा, ये x+1 इज इक्वल टू 0, से यहाँ से x-1 आ जाएगा. अगेन हमारे पास -1, 0 एंड 2 इसमें इंटरवल डिवाइड कर लेगा बिकॉज दिस इज द क्रिटिकल पॉइंट.
अब अगेन उसी टेबल को मैंने पिक किया हुआ है यहाँ पे, ठीक है, बिल्कुल सेम टेबल है जो कि एग्जाम्पल 1 में हमने किया हुआ है। सो एक्स इज लेस देन 1, ये 12x, ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, नेगेटिव, सो इसका साइन नेगेटिव है, ठीक है। फिर ये पॉजिटिव नेगेटिव है इस इंटरवल में, ये वही चीज़ है जो कि मैंने डिस्कस किया एग्जाम्पल 1 में, और वही टेबल है जो मैंने पिक किया हुआ। अब ये देखें, अब हमने ये डिसाइड करना है इसमें, एक तो हमने डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग इससे डिसाइड कर लिया, इसी डेरिवेटिव से। दूसरी बात ये है कि यहाँ पे ये देखें ना, ये माइनस, यहाँ पे ये साइन नेगेटिव है इस इंटरवल, इसी पॉइंट, इस इंटरवल में, माइनस ये 1 के अलावा, बिकॉज x इज इक्वल टू -1 इज ए क्रिटिकल पॉइंट। सो दिस इज -1, इसके यहाँ पे साइन नेगेटिव है, फिर इस -1 to 0 इस इंटरवल में साइन पॉजिटिव है, तो साइन नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ चेंज हो गया, और जब नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ चेंज होता है तो इसको हम क्या कहते हैं, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, इसको हम कहते हैं, दिस इज, ये देखिए, जब नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, इसको लोकल मिनिमम कहते हैं, लोकल, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, सो दिस इज लोकल मिनिमम। और इसमें देख लें, सो एट x इज इक्वल टू -1 पे क्या है, x इज इक्वल टू, या एट c इज इक्वल टू -1 पे लोकल मिनिमम, लोकल मिनिमम है x c इज इक्वल टू -1 पे, क्योंकि ये साइन नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ चेंज करता है, ठीक है, तो ये लोकल मिनिमम होता है, लोकल मिनिमम अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन। और जब पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ चेंज होता है तो ये लोकल मैक्सिमम होता है, एम एक्स मैक्सिमम, मिनिमम एंड मैक्सिमम। देखें इस इंटरवल में देख लें, हमारे पास क्रिटिकल 3 पॉइंट है, सी इज इक्वल टू 0 है, इस पे देख लें, इससे लेफ्ट राइट पे देख लें, तो ये देखें ना, यहाँ पे साइन पॉजिटिव के बाद क्या चेंज हो गया, नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव, सो एट एक्स सी इज इक्वल टू 0, पॉजिटिव से नेगेटिव, सो ये लोकल मैक्सिमम है, लोकल मैक्सिमम। अच्छा, अब ये देखें, नाउ एट सी इज इक्वल टू 2, हमारे पास थर्ड जो क्रिटिकल पॉइंट है, दिस इज 2, जो कि पिछले डिस्कस किया, ये देखें, सो दिस इज नेगेटिव एंड दिस इज पॉजिटिव, सो नेगेटिव टू पॉजिटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव ये क्या होता है, नेगेटिव टू पॉजिटिव, ये लोकल मिनिमम होता है, सो दिस इज लोकल मिनिमम at a point c is equal to 2. So at x c is equal to -1, the function has local minimum value. At c is equal to 0, the function at n has local maximum value, and at c is equal to 2, the function has local minimum value. ओके, और यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये देखें ना, स्लोप ये नेगेटिव है ना, नीचे आ रहा है, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, नेगेटिव से, यहाँ पे स्लोप क्या है, एफ प्राइम ऑफ 0, एफ प्राइम ऑफ एक्स इज पॉजिटिव, यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे नीचे आ रहा है ना स्लोप, यहाँ पे पॉजिटिव आ रहा है, यहाँ पे पॉजिटिव, सो एक नेगेटिव टू पॉजिटिव, सो लोकल मिनिमम एट एक्स इक्वल टू दिस इज -1, और फिर यहाँ पे ये पॉजिटिव है, फिर यहाँ पे नेगेटिव है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो ये मैक्सिमम होता है लोकल, एक्स इक्वल टू 0 पे लोकल मैक्सिमम है। फिर अगेन यहाँ पे ये नेगेटिव स्लोप है, सो -2, और फिर इसी पॉइंट 2 पे, दिस इज 2 पॉइंट पे, फिर ये यहाँ पे स्लोप क्या होता है, इंक्रीज होता है, तो यहाँ पे पॉजिटिव है, एफ प्राइम ऑफ एक्स एज पॉजिटिव हियर, पॉजिटिव स्लोप पॉजिटिव है, और यहाँ पे क्या है, एफ प्राइम ऑफ एक्स एज नेगेटिव,
यहाँ पे नेगेटिव है। सो नेगेटिव टू पॉजिटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव व्हाट? So negative to positive is known as the local maximum, local minimum. So at c is equal to 0, at this critical point, the function has local minimum values. So बिल्कुल सिमिलर तरीका है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के लिए। आप इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग मालूम करें, फिर साइन देख लें, नेगेटिव टू पॉजिटिव चेंज हो रहा है, तो इसी पॉइंट पे ये जो पॉइंट है, ये आपके पास क्रिटिकल पॉइंट है बेसिकली। ठीक है, तो इस पे ये आपके पास लोकल मिनिमम है। फिर पॉजिटिव से नेगेटिव, तो पॉजिटिव से नेगेटिव लोकल मैक्सिमम है, तो इसी पॉइंट पे 0 पे ये आपके पास लोकल मैक्सिमम है, और नेगेटिव से पॉजिटिव तो आपके पास ये लोकल मिनिमम आ जाता है। Another example, find the local maximum and minimum value of the function this and the interval 0 to 2 pi. So इस फंक्शन का आप डेरिवेटिव ले लें और इक्वल टू 0 पुट कर लें। सो द डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन एज 1 प्लस 2 cos ऑफ x आ जाएगा। सो इसको 0 पुट कर लें, सो cos ऑफ x इज इक्वल टू -1/2 आ जाएगा। सो माइनस एक्स की वो वैल्यूज आप देख लें जिसके लिए -1/2 बन रहा है, तो आपके पास वो क्रिटिकल पॉइंट आ जाएंगे। ये सॉल्व हुआ हुआ एग्जांपल, इसको आप खुद चेक कर लें। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट डज डबल डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन से अबाउट एफ? क्या सेकंड डेरिवेटिव एक फंक्शन के बारे में कुछ बता सकता है, कोई इन्फॉर्मेशन बता सकता है? अगर हम फंक्शन की डबल डेरिवेटिव ले लें, सिंगल डेरिवेटिव ले लें, तो इसकी इन्फॉर्मेशन हमें बता दें कि हम इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग भी चेक कर सकते हैं। हम विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव वी कैन चेक द लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमम वैल्यू ऑफ अ फंक्शन। ठीक है, लेकिन सेकंड डेरिवेटिव से हमें कोई इन्फॉर्मेशन मिल सकता है अगर फंक्शन का हम सेकंड डेरिवेटिव ले लें। So, figure 5 shows the graph of two increasing function on the interval AB. Both graphs join point A to point B, but they look different because they bend in different directions. How can we distinguish between these two types of behavior? तो इसमें हम कैसे, ये देखें ना, ये इस तरफ बेंड हुआ हुआ है और ये ग्राफ जो है इस तरफ बेंड हुआ हुआ है, तो इसमें हम कैसे फ़र्क कर लें इस बिहेवियर में कि ये कौन सा बिहेवियर है? ये असल में हम इसको देख रहे हैं जिस कनकेविटी की तरफ आ रहे हैं कि एक इसके लिए एक टर्मिनोलॉजी हम डेवलप करते हैं, कनकेव अप एंड कनकेव डाउन। सो फॉर दिस and figure 6, tangent to these curves have been drawn at several points. In figure A, the curve lies above the tangent and f is also concave upward on the interval AB. And B, the curve lie below the tangent and G is called the concave down on this interval. तो ये देखें ना, अगर हमारे पास ये टेंजेंट है, ये टेंजेंट बन रहा है, ये टेंजेंट बन रहा है, एक ये टेंजेंट बन रहा है। ठीक है, ये टेंजेंट है, एक ये टेंजेंट है, एक ये टेंजेंट बन रहा है, तो ये इस टेंजेंट की ऊपर ये कर्व लाई कर रहा है। तो जब टेंजेंट की ऊपर ये कर्व लाई कर रहा है, ये जो फंक्शन है, ग्राफ ऑफ फंक्शन है, तो इसको हम कहेंगे दिस इज कनकेव अप। और अगर इसके टेंजेंट टेंजेंट के बिलो, ये देखें ना, ये टेंजेंट ऊपर आ रहा है इसके, और कर्व कर्व जो है वो नीचे है। टेंजेंट ऊपर आ रहा है, कर्व नीचे है, टेंजेंट ऊपर आ रहा है। अगर सारे टेंजेंट के नीचे कर्व आ रहा है, तो इसको हम कहते हैं दिस इज कनकेव डाउन। तो ये कनकेव अप है और ये कनकेव डाउन है। टेंजेंट से पता चल जाता है। कर्व गिवन है आपको, तो इसके बारे में बता सकते हैं कि इसकी ये कर्व टेंजेंट ले लें इसी पॉइंट पे, इसी पॉइंट पे, इसी पॉइंट पे, तो ये टेंजेंट के ऊपर आ रहा है। तो जब टेंजेंट के ऊपर कोई कर्व आ रहा है, तो इसको कनकेव अप कहते हैं। जब टेंजेंट के नीचे, यहाँ पे टेंजेंट ले लें, यहाँ पे टेंजेंट ले लें, यहाँ पे टेंजेंट ले लें, तो ये कर्व नीचे आ रहा है, बिलो द टेंजेंट। So if the curve lies below the tangent, then this is the concave down. If the curve lie above the tangent, then this is known as the concave up. Now इसको हम मैथमेटिकली डिफाइन करते हैं कि कनकेव अप क्या होता है, कनकेव डाउन इन इंटरवल क्या होता है, और फिर इसको कैसे चेक करते हैं, कनकेविटी हम कैसे चेक करते हैं। So if the graph of function lies about all its tangent on the interval up in interval I, then it is called the concave up on that interval. If all tangent, if the curve lies all of all of its tangent on the interval I, then this is concave up. If the graph of function lies below all of its tangent
on I, in the interval I, and it is called the concave down on the interval I. For example, हमारे पास ये curve है, this is a curve, and these are the different interval. This is I, interval A से लेकर B तक, B to C and C to D, D to E and E to P and P to Q. So these are different interval. So यहाँ पे आप टेंजेंट ड्रा करते जाएं, just draw tangent over here, tangent over here, tangent over here, tangent over here. So the curve of a function f lies below all the tangent. So this is in this interval, the function, this interval a to b, the function is concave down, और ऑल टेंजेंट की बिलो आ रहे हैं इन दी कर्व। अब यहाँ पे सारे इस इंटरवल में देख लें बी टू सी, देन यहाँ पे टेंजेंट ड्रा करें, यहाँ पे टेंजेंट ड्रा करें, यहाँ पे टेंजेंट ड्रा करें, तो आपके पास ये आप इस तरह लिख सकते हैं। यहाँ पे आप टेंजेंट ड्रा करें, ठीक है, यहाँ पे टेंजेंट ड्रा करें, यहाँ पे टेंजेंट ड्रा करें। सो इन दिस इंटरवल फ्रॉम ए बी टू सी, all tangents, the curve lie above the tangents, okay, above the tangent. So when the curve, the graph of a function lies above the curve, above the all tangent, then this is concave up. So ये concave up है, ये concave down है, ये ऊपर की तरफ है, and this is downward. फिर इसका टेंजेंट देख लें, इसमें टेंजेंट ये आ रहा है, यहाँ पे ये टेंजेंट बन रहा है यहाँ पे। So the curve lie below the all tangents, so this is concave down. यहाँ पे देख लें, यहाँ पे टेंजेंट ड्रा करें, यहाँ पे टेंजेंट ड्रा करें, यहाँ पे टेंजेंट ड्रा करें। सो द कर्व या द ग्राफ ऑफ अ फंक्शन lies above the all tangent, so this is the concave up and this interval d to e. Similarly, the tangent lies below here, so the function is concave up in this interval. And यहाँ पे देखें, the tangent lies below the graph, the tangent, the graph lies below the graph of a function, so this is the concave down. तो ये concavity का concept है in some figure, and these are the interval. सो इसको यहाँ पे आप इसको वो जो फिगर्स देते हैं, इसमें अगर आप देख ले तो ये कनकेव हमारे पास, ये टेंजेंट सारे नीचे आ रहा है, ग्राफ ऊपर इसके ऊपर आ रहा है, तो ये कनकेव अप है। और इसको क्या कहेंगे, ये हमारे पास जो ऊपर आ रहा है, ग्राफ नीचे आ रहा है, ये कनकेव डाउन है। अब इसके लिए एक टेस्ट हम करते हैं कि इसको कैसे मालूम करें कि किसी इंटरवल में फंक्शन जो है वो कनकेव अप है या कनकेव डाउन है। तो इसके लिए टेस्ट ये है, कनकेविटी टेस्ट। If double derivative is positive for all x in the interval, then the graph of f is concave upward in the interval I. Double derivative positive है तो the graph of f is concave up in that interval. अगर double derivative is less than 0, negative है for all x in the interval, then the graph of f is concave down in that interval. इसका मतलब ये है कि ये जो आपके पास आ रहा है ना स्लोप, इसमें इसका स्लोप देखें ना, तो यहाँ पे स्लोप क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। और जब स्लोप इंक्रीज होता है तो उसके जो डबल डेरिवेटिव, इसका जो सेकंड डेरिवेटिव होता है, फर्स्ट डेरिवेटिव इंक्रीज होता है तो सेकंड डेरिवेटिव भी पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। लेकिन जब स्लोप आपके पास डिक्रीज हो रहा है तो इसका जो सेकंड डेरिवेटिव है, फर्स्ट डेरिवेटिव स्लोप नेगेटिव है, तो सेकंड डेरिवेटिव जो आप लेंगे तो वो भी नेगेटिव होगा। कन्केविटी के लिए सिंपल ये है कि डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव है इन द इंटरवल, सो दिस कनकेव अप, डबल डेरिवेटिव नेगेटिव है, सो दिस इज कनकेव डाउन। Another definition: a point P on a curve y is equal to f of x is called an inflection point if f is continuous there and the curve change from concave up to concave down or from concave down to concave up. अगर किसी पॉइंट पे, वो पॉइंट जिस पे कन्केविटी चेंज हो जाती है, तो इसको हम क्या कहते हैं, कनकेव अप से कनकेव डाउन या कनकेव डाउन से कनकेव अप, तो इसको हम कहते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। फॉर एग्जांपल आपके पास इस तरह है ना, एक आपके पास यूं है, आपके पास इस तरह करूं,
या पिछले एग्जांपल में देख लें, आपके पास ये कर्व्स हैं। तो यहाँ पे आपके पास ये कनकेव इस तरह इसी ये पॉइंट है आपके पास, दिस इज अ पॉइंट P, दिस इज अ पॉइंट P, ओके। सो ये पॉइंट है आपके पास, दिस इज पॉइंट P, ठीक है। जो भी है यहाँ पे A लिख लें या जो भी लिख लें, दिस इज A एंड सम पॉइंट f ऑफ A, फंक्शन की कोई वैल्यूज होती है यहाँ पे f ऑफ A एंड टू कामा f ऑफ A। सो यहाँ पे कनकेव ये क्या है, कनकेव डाउन है, कनकेव डाउन है क्योंकि सारे टेंजेंट इसके ऊपर। यहाँ पे कनकेव कनकेव देखे ना, कनकेव अप है, कनकेव अप है इस इंटरवल में। तो यहाँ पे कनकेव डाउन है, यहाँ पे कनकेव अप है, कनकेविटी यहाँ पे चेंज हो गई इसी पॉइंट पे। तो इस पॉइंट को कहते हैं, दिस इज नोन एज द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन वो पॉइंट है जिस पे क्या होता है, जिस पे कनकेव अप कनकेव डाउन में कन्वर्ट हो, कनकेव डाउन कनकेव अप में कन्वर्ट। नाउ सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट फॉर द लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमम। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट हमने डिस्कस किया था, तो उसमें अगर पॉजिटिव से साइन, फर्स्ट डेरिवेटिव अगर साइन पॉजिटिव से नेगेटिव है तो लोकल मैक्सिमम है, नेगेटिव टू पॉजिटिव है तो लोकल मिनिमम है। अब सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट लोकल मैक्सिमा, तो सेकंड डेरिवेटिव का एक इम्प्लीकेशन हमें इंफॉर्मेशन हमने इसने दे दिया कि व्हाट इज द पॉइंट, व्हाट इज द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या होता है, और एक उसने कनकेविटी बता दिया, इंफॉर्मेशन बताया कि कनकेव अप कब होता है इंटरवल में और फंक्शन कनकेव डाउन होता है कब। सो द सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, suppose that suppose f double prime is continuous near the point C, where C is the critical point, if first derivative is equal to 0 and second derivative at point C is greater than 0, then f has local minimum at a point C. And if f prime is 0 and second derivative is less than 0, then f has local minimum at a point C. ये मैक्सिमम और मिनिमम अगर 0 है, डबल डेरिवेटिव 0 है किसी पॉइंट पे, किसी क्रिटिकल पॉइंट आपके पास आ रहे हैं, इस पे डबल डेरिवेटिव 0 है, तो फिर ये हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं देता कि यहाँ इसी पॉइंट पे लोकल मैक्सिमम है या लोकल मिनिमम है। तो इस केस में फिर बेहतर क्या है, इस केस में फिर बेहतर ये है कि आप जो फर्स्ट टेस्ट है लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा के लिए, तो वो आप लोग यूज़ कर लें। इसमें सारी चीज़ें हमने डिस्कस करना है। एग्जांपल 6 में डिस्कस द कर्व y इज इक्वल टू x पावर 4 माइनस 4x क्यूब विद रिस्पेक्ट टू कनकेविटी, कि कनकेव अप है कनकेव डाउन है, कहाँ पे कनकेव अप है कहाँ पे किस इंटरवल में कनकेव डाउन है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहाँ पे हैं, कौन कौन से हैं, एंड लोकल मैक्सिमा मिनिमा कहाँ पे हैं, और कौन कौन सी वैल्यू है, फाइंड द वैल्यू किस पॉइंट पे है और कौन कौन सी वैल्यूज हैं, फंक्शन में पुट कर ले तो हमारे पास आ जाएगी। यूज दिस इंफॉर्मेशन टू स्केच द कर्व, और इस इंफॉर्मेशन को आपने यूज करके ग्राफ स्केच करना है इसका। तो ये फंक्शन है आपके पास f of x is equal to x की पावर 4 माइनस 4x क्यूब, देन डेरिवेटिव आप ले लें। डेरिवेटिव क्यों ले लें आप क्रिटिकल पॉइंट मालूम करने के लिए डेरिवेटिव ले लें। सो इस फंक्शन का डेरिवेटिव आ जाएगा 4x क्यूब, इसका आ जाएगा 12 माइनस 12x स्क्वेयर। सो यहाँ से 4x स्क्वेयर कॉमन ले लें, सो ये आपके पास आ जाएगा x माइनस 3। सो नाउ इसको डेरिवेटिव को इक्वल कर पुट कर ले 0 टू फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट। So this will be equal to x is equal to 0 and x minus 3 is equal to 0. This means that x is equal to 3. तो ये हमारे पास इंटरवल आ गया हमारे पास, दिस इज क्रिटिकल पॉइंट 0 और 3 है, तो ये तीन इंटरवल बन जाते हैं, एक लेस देन 0 ये रीजन और एक 0 और 3 के दरमियान एंड x इज ग्रेटर देन 3, तो ये बन जाता है। तो ये इंटरवल बन गया, x इज लेस देन 0,
या माइनस इन्फिनिटी टू ज़ीरो, दिस इज़ माइनस इन्फिनिटी टू ज़ीरो, और x 0 to 3 या x is less than 3 greater than 0 is 0 to 3, और एक x is greater than 3 या we can write this x is greater than 3 or 3 to infinity। अच्छा, अभी इस टर्म को लिख लें, 4x स्क्वायर लिख लें, यहाँ पे 4 रह गया है, आप 4 भी लिख लें साथ। दिस इज 4x स्क्वायर। सो यहाँ पे x माइनस 3 ये सेकंड टर्म लिख लें, यहाँ पे 4x ये मैंने लिख लिया और ये भी लिख लिया, f प्राइम ऑफ x लिख लें। फिर इसका साइन देख लें, तो इसी इंटरवल में व्हेन x इज लेस देन 0 ले लें, नेगेटिव नंबर स्क्वायर ऑफ नेगेटिव नंबर इज पॉजिटिव, तो इसका रिजल्ट पॉजिटिव आ रहा है। इसमें नेगेटिव पुट कर लें, तो नेगेटिव लेट सपोज -1 पुट करें, -1 माइनस 3 इज -4, सो इट इज माइनस। जो भी वैल्यू आप यहाँ इस इंटरवल में ले लें, x की पुट कर ले, तो आपके पास ये इसका आंसर नेगेटिव में आएगा, दिस इज नेगेटिव। तो अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर ले तो क्या बनेगा, प्लस माइनस, प्लस मल्टीप्लाइड विद माइनस, सो दिस इज माइनस। अब इस इंटरवल में देख लें 0 to 3, ये इसमें पुट कर ले, 0 to 3 के दरमियान कोई भी वैल्यू पुट कर लें, सो दिस इज पॉजिटिव क्योंकि स्क्वायर है, और 0 to 3 के दरमियान लेस देन 3 नॉट इक्वल टू 3, सो इसके दरमियान कोई भी वैल्यू पुट कर ले तो ये नेगेटिव है। लेट सपोज मैं 2 पुट करता हूँ, तो 2 माइनस 3 इज -1, रिजल्ट इसकी नेगेटिव आ रहा है, तो इसका ओवरऑल इस इंटरवल में रिजल्ट नेगेटिव है, बिहेवियर नेगेटिव है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, प्लस मल्टीप्लाई विद नेगेटिव, सो दिस इज नेगेटिव। अब इस इंटरवल में देख लें पॉजिटिव, x इज ग्रेटर देन 3, 3 से ग्रेटर वैल्यू इसमें पुट कर ले तो ये पॉजिटिव रहेगा, जिसमें पुट कर ले 3 से ग्रेटर वैल्यू, मतलब ये 3.5 पुट कर लें, तो 3.5 माइनस 3 इज 0.5, या 4 पुट कर ले तो 4 माइनस 3 इज 1, तो वाज इज पॉजिटिव। तो x इज ग्रेटर देन वैल्यू के लिए इसका जो बिहेवियर है वो क्या है, वो पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव को पॉजिटिव से मल्टीप्लाई कर ले तो ये पॉजिटिव आ जाता है। तो अब आप साइन साइन देख लें, साइन यहाँ पे देख लेना कि इस हमने हमने चेक करना है नाउ, चेक टू दी लोकल मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू, ये लोकल मिनिमम मैक्सिमम कहाँ पे है। तो इसके लिए हम फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट यूज़ करते हैं पहले, फिर सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट भी यूज़ करेंगे, क्योंकि हमने सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट भी यूज़ किया, डिस्कस किया। सो यहाँ पे नेगेटिव टू नेगेटिव है, साइन नहीं चेंज हो रहा है इस इंटरवल में, एट एक्स इक्वल टू 0, एट एक्स इक्वल टू 0 भी इसका इंटरवल, इसी इंटरवल में माइनस इन्फिनिटी टू 0 एंड 0 to 3, इसके दरमियान में 0 के ऊपर लेफ्ट और राइट में इसका साइन चेंज नहीं हो रहा, सो इसका कोई नो चेंज, नॉट चेंज, साइन of this function is not changed. So this means that at x equal to 0, the function has no local maximum और नॉर लोकल मिनिमम वैल्यू, उसकी कोई ना मैक्सिमम वैल्यू है ना मिनिमम वैल्यू है। अब इसको देख लें, ये नेगेटिव है, इस इंटरवल में देख लें 0 to 3 एंड 3 to infinity, तो इसमें ये नेगेटिव है और नेगेटिव से फिर पॉजिटिव की तरफ चेंज हो गया, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ चेंज हो जाते हैं, तो क्या होता है, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ चेंज हो जाए तो वो हमारे पास लोकल मैक्सिमम होता है, लोकल मिनिमम होता है। पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ चेंज हो रहा है ना साइन, सो इसी पॉइंट पे x इक्वल टू 3 भी हमारे पास है, दिस इज लोकल मिनिमम। अब फंक्शन में पुट कर ले, 0 की तो कोई वैल्यू नहीं है ना, तो इसमें 3 क्या है हमारे पास लोकल मिनिमम में, तो फंक्शन में आप 3 पुट कर लें, जो कि गिवन फंक्शन है हमारे पास, ये इसी गिवन फंक्शन में आप 3 पुट कर लें, तो इससे हमारे पास आ जाएगा -27, सो दिस इज द लोकल मिनिमम। अब सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट यूज कर लें, हम लोकल मैक्सिमम मिनिमम मालूम करें बाय यूजिंग द सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। तो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से हम देखते हैं, इसका डेरिवेटिव ले लें, सेकंड डेरिवेटिव ले लें इस फंक्शन का, फर्स्ट डेरिवेटिव हमने यहाँ पे ले लिया, ये दिस इज द फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव ले लेते तो ये 12x स्क्वायर आ जाएगा और ये 24x आ जाएगा, तो दैट इज 12x स्क्वायर और -24x आ जाएगा, सो 12x इससे कॉमन ले लें, सो x - 2 आ जाएगा। अब इसमें क्रिटिकल पॉइंट पुट कर लें, सेकंड डेरिवेटिव क्या है, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट ये है कि आप क्रिटिकल पॉइंट मालूम करें, जो कि हमने पहले मालूम किए हुए हैं, एट x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 3 या c इक्वल टू 0 एंड c इक्वल टू 3, दीज आर द क्रिटिकल पॉइंट।
तो आप क्रिटिकल पॉइंट इस सेकंड डेरिवेटिव में पुट कर ले। सो व्हेन c इज इक्वल टू 0, डबल डेरिवेटिव इसमें 0 पुट कर ले तो ये 0 आ जाता है। तो जब डबल डेरिवेटिव 0 आ जाए तो हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देता। अगर पॉजिटिव आए तो ये लोकल मैक्सिमम है, नेगेटिव आए तो लोकल मिनिमम है। एट c इज इक्वल टू 3p क्या है, इसमें इस फंक्शन में पुट कर ले 3, इसमें 3 पुट कर ले तो हमारे पास ये 12 मल्टीप्लाई 36 आ जाएगा और यहाँ पे 36 बनेगा। सो दिस 36 इज पॉजिटिव। सो डबल डेरिवेटिव एट दिस पॉइंट इज पॉजिटिव, एट दिस क्रिटिकल पॉइंट इज पॉजिटिव। सो जब डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव होता है तो अकॉर्डिंग टू द सेकंड टेस्ट डेरिवेटिव टेस्ट, तो ये लोकल मिनिमम बन जाते हैं, लोकल एल मिनिमम एट एक्स इक्वल टू 3। सो मिनिमम वैल्यू सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट इज इक्वल टू -27। यहाँ पे एक बात क्लियर कर लें कि सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट अगर ये यहाँ पे फॉर एग्जांपल आपके पास यहाँ पे तो 0 आ गया तो ये हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा। अगर आपके पास अनडिफाइन आ जाए, सेकंड डेरिवेटिव ले ले, फंक्शन में क्रिटिकल पॉइंट पुट कर ले, आपके पास अनडिफाइन आ जाए, फिर भी आप कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकता। सो इसका मतलब ये है कि फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट जो है वो हमारे पास ज़्यादा यूज़फुल है और हम इसको ज़्यादा यूज़ कर सकते, इन्फॉर्मेशन ज़्यादा दे सकते हैं। सेकंड डेरिवेटिव पे यहाँ पे हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी 0 की, लेकिन फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट ने हमें ये उसने क्लियर कर दिया कि यहाँ पे साइन चेंज नहीं हो रहा तो यहाँ पे नो लोकल मैक्सिमा मिनिमा है, 0 पे लोकल नो लोकल मैक्सिमा मिनिमा है और x इक्वल टू 3 भी हमारे पास लोकल मिनिमम वैल्यू है। तो इसने कम से कम इन्फॉर्मेशन बता दिया कि यहाँ पे साइन नहीं चेंज हो रहा है, इसका स्लोप चेंज नहीं हो रहा, इस एट एक्स इक्वल टू 0 स्लोप इसका चेंज नहीं हो रहा है या साइन डेरिवेटिव नहीं चेंज हो रहा, तो ये हमारे पास नो लोकल मैक्सिमम मिनिमम एट एक्स इक्वल टू 3। तो इस पे हमारे पास नहीं है, लेकिन यहाँ पे सेकंड डेरिवेटिव ने हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया। सो इसलिए जो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट है ये बेटर है। अच्छा, अब हम चेक कर रहे हैं कि कनकेव कनकेव अप है, कनकेव डाउन किस पॉइंट पे है। तो कनकेविटी के लिए क्या है, ये फंक्शन का सेकंड डेरिवेटिव है जो कि ऑलरेडी हम कैलकुलेट कर चुके हैं पिछली स्लाइड में, 12x इंटू x माइनस 2। तो इसको इक्वल टू 0 पुट कर लें। जब डबल डेरिवेटिव इक्वल टू 0 पुट कर लें तो आपके पास आ जाएगा x, इसको x इक्वल टू 0 और यहाँ से आ जाएगा x इक्वल टू 2 आ जाएगा। ठीक है। सो ये दो आपके पास इसी डेरिवेटिव जो आपने 0 पुट कर लिया तो आपके पास ये इंटरवल इसने दो हिस्से में डिवाइड कर लिया, एक 0 में एक 2। ठीक है, 3 हिस्सों में, ये 0 से लेस माइनस इन्फिनिटी टू 0 और 0 टू 2, तो ये 0 टू 2 आ जाएगा और 2 टू इन्फिनिटी आ जाएगा, 2 टू इन्फिनिटी आ जाएगा। इसको इसी फॉर्म में लिख ले, x इज लेस देन 0, x इज ग्रेटर देन 2, लेस देन 2, या इसी फॉर्म में लिख ले तो एक ही बात है। आप किस फॉर्म को फॉलो करेंगे अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं। इसका मतलब ये है 0 टू इन्फिनिटी, यहाँ से यहाँ तक, फिर 0 टू 2, फिर 2 टू इन्फिनिटी, इस तरह लिख लें आप। तो ये इंटरवल आपके पास है। अब इसमें इसका साइन देखना है, डबल डेरिवेटिव का साइन देखना है, क्योंकि डबल डेरिवेटिव अगर पॉजिटिव है तो ये अपवर्ड है, कनकेव अपवर्ड है। तो यहाँ पे आप पुट कर ले इस इंटरवल में कोई भी वैल्यू ले लें, इस इंटरवल में से कोई भी वैल्यू आप ले लें। ठीक है, लेट सपोज मैं 1 ले लेता हूँ, 0 टू मैं -1 ले लेता हूँ। सो यहाँ पे माइनस, या -1, सो -1 -12 और -3, तो -12 और -3 को मल्टीप्लाई कर लें तो ये 36 बन जाता है प्लस 3। इसका साइन ओवरऑल पॉजिटिव है इस इंटरवल में। इसको चेक करने का तरीका ये कि इस इंटरवल में आप कोई भी पॉइंट ले लें इनसाइड दिस इंटरवल, क्योंकि इसमें ये माइनस इन्फिनिटी ये शामिल नहीं है, ये भी शामिल है क्योंकि ओपन इंटरवल है। अच्छा, इसमें चेक कर लें, कोई भी पॉइंट ले लें इस 0 और 2 के दरमियान, तो इसमें ये नेगेटिव आ रहा है। लेट सपोज 1 ले लें, 2 और 0 2 के दरमियान 1, तो ये 12 और 1 माइनस 2 1 -1, सो -12 मल्टीप्लाइड विद -1, सो दिस इज -12। इसका ओवरऑल रिपोर्ट जो है ओवरऑल बिहेवियर जो है नेगेटिव है। तो इस इंटरवल में देख लें 2 टू इन्फिनिटी, तो इसमें भी पॉजिटिव आ रहे हैं। आप कोई भी पॉइंट यहाँ से पिक कर लें, इसमें पुट कर लें, तो आपके पास इसका ओवरऑल बिहेवियर जो है वो पॉजिटिव है। तो ये जब आपके पास सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव है तो ये अपवर्ड, कनकेव अपवर्ड है। सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव है तो कनकेव डाउनवर्ड है। आप पहले डेफिनेशन याद कर लें सही तरीके से, और फिर आपके पास ये सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव, सो दिस इज अपवर्ड।
अब इसी टेबल से अब हम पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन चेक कर रहे हैं कि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कौन सा पॉइंट है। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन वो है जिस पे कन्टिन्यूटी चेंज हो जाएगी। तो इस 0 और 2 पे हमने देखना है, ठीक है, कि यहाँ पे कनकेव ये अपवर्ड है, कनकेव अपवर्ड है यहाँ पे, ठीक है। फिर कनकेव अप के बाद फिर 0 और 2 इस पे कनकेव अप है, फिर ये कनकेव डाउन हो गया, ठीक है। कनकेव अप से कनकेव डाउन, जब कनकेव अप से कनकेव डाउन हो जाए या कनकेव डाउन से कनकेव अप हो जाए तो इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, इन्फ्लेक्शन पॉइंट कहते हैं। सो एफ ऑफ 0 इज 0। सो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कौन कौन से पॉइंट आ रहे हैं, एक्स इक्वल टू 0 पे एक पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, एक्स इक्वल टू 2 पे, क्योंकि यहाँ पे कनक्यूटी चेंज हो जाती है, कनकेव अप से कनकेव डाउन हो गया और कनकेव डाउन से फिर कनकेव अप हो गया। तो इसी पॉइंट पे भी एक्स इक्वल टू 0 पे भी कनकेव इन्फ्लेक्शन पॉइंट है और एक्स इक्वल टू 2 पे भी हमारे पास इन्फ्लेक्शन पॉइंट है, क्योंकि इस पे कनक्यूटी चेंज होगी। तो वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या होता है, पॉइंट इसी फॉर्म में होता है ना, एक्स वाई की फॉर्म में होता है। सो इसमें हम पुट कर लेते हैं फंक्शन में, व्हेन एक्स इक्वल टू 0 द फंक्शन वैल्यू 0। फंक्शन यहाँ पे नहीं, फंक्शन में पुट करना है जो कि हमारे पास गिवन फंक्शन है। और फिर इसमें 2 पुट कर ले ये पॉइंट, क्योंकि 2 भी इन्फ्लेक्शन पॉइंट बन रहे तो ये -16 आ जाते हैं। तो आपने सो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है 0 0 एंड पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन इज 2 -16। सो दिस इज द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो इसी इंफॉर्मेशन को आप यूज कर लें कि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आपके पास 0 0 पे आ रहा है, तो ये आपके पास 0 0 आ गया। जब 2 पुट कर ले तो ये -16 आ रहा है, 2 भी -16 इधर आ रहा है, ठीक है। तो आपने ग्राफ को इस तरह करना है, यूं यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। ये इन्फ्लेक्शन पॉइंट से हमें पता चल गया, ये पॉइंट और ये पॉइंट। फिर आपने कन्क्यूटी चेक करना है, कनकेव आप कहाँ पे है, ये 0 से लेकर 0 से इधर तक है, इधर -इन्फिनिटी, -इन्फिनिटी टू 0, तो इसका साइन पॉजिटिव है, ठीक है। तो ये कनकेव अप है, यहाँ पे इसका टेंजन इस तरफ आ रहा है, इसका कनकेव अप है ना, तो इसका ये इस तरह इसी फॉर्म में आ जाएगी यहाँ पे। फिर 0 to 2, 0 to 2 ये कनकेव डाउन है, तो ये इस तरह आ जाएगा। कनकेव डाउन का ग्राफ यूँ होता है, इसके सारे टेंजन जो है वो इससे बिलो होता है ग्राफ। तो ये कनकेव डाउन आ गया 0 to 2 के दरमियान इस तरह। तो इसलिए ये कनकेव अप है तो यूँ बन गया, कनकेव डाउन है तो ये इस तरह बन गया, और यहाँ पे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन भी है। फिर हमारे पास इंफॉर्मेशन एक है कि x इज इक्वल टू 3 भी क्या है, ये मिनिमम है, लोकल मिनिमम है। सो व्हेन x इज इक्वल टू 3, तो इस ये पॉइंट है, इस पे लोकल मिनिमम है। 3 पुट कर लेते ये -27 बन जाता है। तो इसको हम ड्रा कर सकते हैं ना इस xy प्लेन में। व्हेन x इज इक्वल टू 3 द फंक्शन वैल्यू इज -27, सो ये 27 है आपके पास, तो ये वैल्यू हमारे पास मिनिमम वैल्यू है। और फिर 2 के बाद जो है, 2 के बाद जो है आप वैल्यू देख लेना, तो ये कनकेव अप हो जाता है, ये देख कनकेव अप, तो ये कनकेव अप होना शुरू हो गया, यहाँ से कनक्यूटी चेंज होगी। तो ये हमारे पास इस तरह ग्राफ बन गया है, हमने इस इंफॉर्मेशन को यूज करके इसका ग्राफ प्लॉट किया। आप एक्सरसाइज 4.3 को देख ले, इसमें रिलेटेड क्वेश्चन कनकेव अप, कनकेव डाउन, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, इससे रिलेटेड 1-2 एग्जांपल सॉल्व कर लें। In section 4.7, optimization problem, the method we have learned in this chapter for finding extreme values have a practical application in many areas of life. A business person want to minimize cost and maximize profit. A traveler want to minimize transportation time. Fermat's principle is optics, that light follows the path that takes the least time. In this section, we solve such problem as maximizing areas, volume, and profits, and minimizing distance, time, and costs. तो ये सारी चीज़ें, ये these are the application of the
फर्स्ट डेरिवेटिव एंड सेकंड डेरिवेटिव्स। तो क्योंकि चीज़ों को मिनिमाइज करना, वॉल्यूम, प्रॉफिट वगैरह वगैरह, तो इसको कैसे यूटिलाइज कर लें। तो ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम में इसमें इसमें कुछ रूल्स हैं, कुछ स्ट्रेटजीज है, इसको आपने यूज़ करना है। सो स्टेप इन द सॉल्विंग ऑप्टिमाइजिंग प्रॉब्लम, अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम। सो पहले ये है कि आप प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड कर लें कि इसमें क्या नोन है, व्हाट इज़ अननोन, व्हाट आर द गिवन क्वांटिटीज, व्हाट आर द गिवन कंडीशन। तो ये सारे आपने पिक करना है पहले। And then if possible, then draw a diagram. So in most problem it is useful to draw a diagram and identify given and required quantities on the diagram. तो simple ये है कि आप diagram draw कर लें, फिर introduce notation, assign a symbol to quantities, that is to maximize or minimize. Let's call it Q for now. Also select a symbol A, B, C for other unknown quantities and label the diagram with these symbol. It may help us to initial as a suggestive symbol, for example A for area, H for height, T for time. So इसके लिए आप पैरामीटर जो है इसके लिए नाम आप सिंबल आप सेलेक्ट कर लें। सो इंट्रोड्यूस नोटेशन, सो ये नोटेशन हाइट के लिए एच, लेंथ है एक्स, विड्थ है आपके पास वाई कर लें। तो इसके लिए आप नोटेशन नोटेशन के फॉर्म सेलेक्ट कर ले कि इंट्रोड्यूस कर ले नोटेशन। एक्सप्रेस क्यू इन टर्म ऑफ सम अदर सिंबल फ्रॉम स्टेप 3। आप एक चार्ट पे क्यू लिख लें कैपिटल के फॉर्म में, फिर स्मॉल वाले जो सिंबल है यहाँ पे इसके फॉर्म में इसके दरमियान रिलेशन मालूम कर लें। स्टेप 5, if q is expression is a function of more than one variable in step 4, और इसमें एक वेरिएबल से ज़्यादा वेरिएबल आ रहा है, ये फंक्शन हमारे पास बन रहा है एक वेरिएबल से ज़्यादा। यूज द गिवन इंफॉर्मेशन टू फाइंड द रिलेशनशिप इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन among these variable, then use the quantities equation to eliminate all but one of the variable in the express for q. Thus q will be the expressed as a function of one variable x, say x, and this q is equal to f of x. Write the domain of this function in the given context. तो आपके पास अगर आपके पास दो वेरिएबल आ रहे हैं तो इसको आप एलिमिनेट कर ले। एक वेरिएबल वो कहाँ से एलिमिनेट कर ले, वो जो इक्वेशन जो गिवन इन्फॉर्मेशन है उसको इक्वेशन के फॉर्म में बना ले और इसको एलिमिनेट कर ले, और फिर इसको लिख ले एक ही इक्वेशन के फॉर्म में, एक फंक्शन के फॉर्म में, एक वेरिएबल के फॉर्म में लिख ले, और फिर इसका डोमेन लिख ले कि इसका डोमेन क्या है। इसको इसी पैटर्न को हमने फॉलो करना है यूजिंग द एग्जांपल 1 में। एग्जांपल 1 में हमने ये सारी चीज़ें फॉलो करना है। And use the method of section 4.14 to find the absolute maximum or minimum value of function. In particular, if the domain of f is closed interval, then the closed interval method in section 4.1 can be used. वो कौन सा मेथड है? अगर क्लोज इंटरवल है आपके पास इसका डोमेन, तो फिर आप इसका लोकल मैक्सिमा या एब्सोल्यूट मैक्सिमा मिनिमम कैसे मालूम करें? एंड पॉइंट पे मालूम करें, जो कि 4.1 सेक्शन में हमने डिस्कस किया था। क्रिटिकल पॉइंट में मालूम करें और इंटरवल के एंड पॉइंट पे मालूम कर ले। तो जो भी मैक्सिमम है, मैक्सिमम वैल्यू है, तो वो लोकल एब्सोल्यूट मैक्सिमम है, जो मिनिमम है उसको एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू कह दें। ये सारा प्रीवियस इंफॉर्मेशन को यूज़ करके हम ये बता सकते हैं। फॉर एग्जांपल, a farmer has 2400 foot of fencing and want to fence off a rectangular field that border a state river. He need no fence along the river. What are the dimension of the field that has the largest area? What are the dimension of the field that has the largest area? तो एरिया के डायमेंशन क्या है? डायमेंशन का मतलब है कि इसका लेंथ वेट क्या है, इसका डेप्थ और वेट क्या है, या इसका लेंथ और वेट क्या है। अगर वॉल्यूम की बात हो रही है तो इसमें लेंथ, वेट और हाइट तीनों इसको डायमेंशन कहते हैं। सो लेट हमारे पास 2400 इसका जो है फुट इसका जो फेंसिंग बॉर्डर हमारे पास है, तो इसको हमने इस तरह से करना है कि वो मैक्सिमम इसको हमने इस तरह बनाना है कि मैक्सिमम एरिया को ये कवर अप कर ले, मैक्सिमम एरिया। सो लेट वी ट्राई करते हैं कि इसका वेट जो है, लेंथ जो है वो हम ले लेते हैं 2200 ले लेते हैं, और बाकी 100 जो है वो इसका वेट लेते हैं। इस साइड पे ये बॉर्डर बनाना है, ये वाटर है, इसके बाद रिवर है, इसकी मैक्सिमम एरिया कवर कर ले। हमारे पास ये हमारे पास 24 फुट आपके पास फेंसिंग है।
ये फेंस हमने हमारे पास गिवन है 2400 फुट। सो लेट्स सपोज दिस इज टू 2200, ये लेंथ हो गया, ये वेट 100 ये टोटल क्या बन जाता है 2400। तो इसका एरिया मालूम करें तो एरिया लेंथ वेट को मल्टीप्लाई कर ले, तो लेंथ और वेट को मल्टीप्लाई कर ले यहाँ से, तो हमारे पास ये आ जाते हैं फुट स्क्वायर। अच्छा, एक और गेस लेता हूँ मैं, इससे इसको 700 में ये लेता हूँ, 700 ये लेता हूँ, 1000 ये लेता हूँ, तो ये टोटल कितना बन जाता है, ये फेंस बन जाता है टोटल 2400 फुट बन जाता है। तो इसमें लेंथ और वेट ले ले तो क्या बनता है, लेंथ और वेट को मल्टीप्लाई कर ले तो ये 70,000 बन जाता है, 7 लाख बन जाता है, 7 लाख फुट बन जाता है। और फिर मैं इसलिए लेता हूँ कि इसको और मज़ीद में बढ़ाता हूँ, ठीक है। तो फिर ये क्या बन जाता है, फिर दिस इज़ 1000, दिस इज़ 1000, और इसको मैं कम कर लेता हूँ 400। तो इनको एरिया मल्टीप्लाई कर ले, लेंथ वेट होता है ना, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हमारे पास ये एरिया बन जाते हैं। तो इसमें आपके पास एरिया ज़्यादा नज़र आ रहा है, ठीक है। इस केस में हमारे पास एरिया ज़्यादा नज़र आ रहा है, इस इन दोनों में नहीं, इसमें भी नहीं है, इसमें कम है, इसमें भी कम नज़र आ रहा है, लेकिन इसमें हमारे पास ये एरिया ज़्यादा नज़र आ रहा है। तो हमने ये तो बाय गेसिंग हमने कर लिया कि हम अगर इसका लेंथ, ये वेड्थ या ये डेप्थ ले लें, हम इसकी वेड्थ ले लें, ये दोनों डेप्थ हम ले लें इसकी, कि इसका डेप्थ इतना होना चाहिए, हाइट इतना होना चाहिए, और इसका जो वेड्थ है वो इतना होना चाहिए, तब हमारे पास ये मैक्सिमम एरिया को कवर करेगा। तो लेट्स सपोज हम इस तरह फिगर बना लेते हैं कि ये हमारे पास डायमेंशन है, ये एरिया रिप्रेजेंट करता है, ये एक्स है, ये वाई है, और ये भी एक्स है, दोनों साइड सेम है, तो ये एक्स है। सो वी विश टू मैक्सिमाइज द एरिया ए ऑफ द रेक्टेंगल, इसका एरिया मैक्सिमाइज करना, मैक्सिमम एरिया हमें चाहिए, तो हमने क्या करना है, इसको मैक्सिमाइज करना है। लेट एक्स एंड वाई बी द डेप्थ एंड विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल, लेट दिस इज द विड्थ and this is the depth of the rectangle. Then we express A in term of x and y. So what is area? Area is equal to this side multiplied with this side. So A is equal to x y. अब वो स्टेप 4 में जाए ना, पिछले जो हमने डिस्कस किया जनरल रूल हम डिस्कस किए, तो ये हमारे पास दो वेरिएबल का फंक्शन है। तो इसमें हमने ए को हमने रिप्रेजेंट करना है इन द फॉर्म ऑफ वन वेरिएबल, तो ये वाई हमने एलिमिनेट करना है। वाई कैसे एलिमिनेट कर लें, तो जो गिवन इन्फॉर्मेशन है वो यूज़ कर लें, और वो गिवन है कि जो टोटल लेंथ ऑफ द फेंसिंग है वो किस चीज़ का इक्वल है, 2400 फुट का। तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये फेंसिंग बॉर्डर है आपके पास, ठीक है। तो इसका टोटल एरिया किस चीज़ का इक्वल है, 24। तो इसका एरिया, इसको सम कर लें, x प्लस वाई प्लस एक्स, सो दिस विल बी 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 2400, ये गिवन है। सो 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 2400, क्योंकि इसको सम कर ले। अच्छा, यहाँ से इस x को इधर शिफ्ट कर ले, y आ जाएगा। सो y इज इक्वल टू 2400 माइनस 2x आ जाएगा। ये y की जो वैल्यू है ना, ये उठा के इधर पुट कर ले, जब इधर पुट कर ले तो ये आ जाएगा a इज इक्वल टू एक्स वाई, और y की जगह ये वैल्यू पुट कर लें, सो ये आ जाएगा x इंटू 2400 माइनस 2x, इसको सिंप्लीफाई कर ले तो 2400 x माइनस 2x स्क्वायर आ जाएगा। अब इसी फंक्शन को, ये वही फॉर्म है जो कि हम कह रहे थे कि इसको q इंटू एफ ऑफ एक्स के फॉर्म में लिख लें, ये पिछले हमने बता दिया, ये एफ ऑफ एक्स के फॉर्म में। तो ये हमारे पास एरिया जो है, दिस इज अ फंक्शन ऑफ एक्स, एरिया क्या है, दिस इज अ फंक्शन ऑफ एक्स है, ठीक है, जो कि हमारे पास ये राइट साइड ये आ गया। Now note that the largest x can be 1200, ये इसकी लार्जेस्ट वैल्यू 1200 है, क्योंकि ये एरिया हमेशा के लिए पॉजिटिव होता है, और जब हम इसमें 1200 पुट कर लेते हैं तो ये ज़ीरो बन जाता है, ठीक है। सो नेगेटिव नहीं हो सकता, 1200 से ज़्यादा लेंगे तो ये नेगेटिव आ जाएगा। सो इसलिए इसकी जो लार्जेस्ट एरिया है वो 1200 है, and this use all the fins for the depth and none for the width, and x cannot be negative, x नेगेटिव, ये मैंने पहले बता दिया कि x नेगेटिव नहीं हो सकता, तो इसका डोमेन जो है वो कहाँ से कहाँ तक है। सो द फंक्शन वी विश टू मैक्सिमाइज इन दिस डोमेन 0 to 1200,
क्योंकि इसको अगर आप 0 भी पुट कर ले तो ये x इक्वल टू 0 आ जाता है और x इक्वल टू 1200 आ जाता है। तो ये इसका एंड पॉइंट्स है और ये इसका डोमेन है, क्योंकि ये नेगेटिव नहीं हो सकता। ग्रेटर इक्वल टू 0 हो सकता है क्योंकि ये एरिया है और एरिया जो है वो 0 हो सकता है, और या 1200 के अलावा जब हम लेंगे ना तो ये हमारे फंक्शन नेगेटिव आएगा। तो ये हमारे पास फंक्शन बन गया, ये a ऑफ x इज इक्वल टू 2400x माइनस 2x² एंड दिस इज ये, और इसका ये डोमेन आ गया। तो अब ये क्या है, ये हमारे पास इस तरह का फंक्शन है जिस तरह हम कह देते हैं ना कि दिस इज f ऑफ x है। लेट सपोज मैं इसको कह देता हूँ कि लेट दिस इज f ऑफ x, जो कि इसका राइट साइड इस फॉर्म में ये वाला लिख लेता हूँ, और ये हमारे पास इंटरवल है, क्लोज इंटरवल है 0 to 1200। तो इसको मिनिमाइज कर लें, तो इसको मैक्सिमाइज कर लें। मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे, मिनिमम वैल्यू कहाँ है? इसके लिए क्या तरीका है? इसका तरीका ये है कि फंक्शन का हम डायरेक्ट ले लेते हैं, ठीक है, इज इक्वल टू 0 इक्वल कर लेते हैं, हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट आ जाते हैं। क्रिटिकल पॉइंट आ जाते हैं तो फंक्शन फंक्शन क्या करते हैं, हम फंक्शन में हम क्रिटिकल पॉइंट पुट करते हैं, ठीक है, और एंड जो पॉइंट्स है ये फंक्शन में पुट कर लेते हैं। तो जो मैक्सिमम वैल्यू है वो मैक्सिमम है, जो मिनिमम है वो लोकल मिनिमम वैल्यू है। सो अब इसका डेरिवेटिव ले लें, डेरिवेटिव ले लिया हमने, इसका डेरिवेटिव ले लिया 24 माइनस 4x आ जाएगा, और इसको 0 का इक्वल पुट कर ले। जब इसको इक्वल टू 0 पुट कर ले तो ये 0 आ जाएगा। अब यहाँ से x मालूम करें तो 600 आ गया। अब ये दिस इज द क्रिटिकल पॉइंट, दिस इज व्हाट, दिस इज द क्रिटिकल पॉइंट। और ये डेरिवेटिव हम क्यों लेते हैं? एक क्रिटिकल पॉइंट मालूम करने के लिए लेते हैं। सो नाउ put the value of the critical point in the given function, in this function, ये जो हमारे पास फंक्शन है ये ax इज इक्वल टू दिस, तो इससे हमारे पास आ जाता है 7,20,000, 7,20,000 आ जाता है यहाँ से। और यहाँ पे 0 पुट कर लेते तो हमारे पास 0 आ जाता है। और इसमें एंड पॉइंट पुट कर लेना, इसमें 600 ये क्रिटिकल पॉइंट पुट कर लिया, फिर एंड पॉइंट 0 है तो 0 आ गया हमारे पास। फिर इसमें 1200 पुट कर ले, इस फंक्शन में पुट कर ले जो पिछले जो गिवन है, इस फंक्शन में पुट कर ले तो हमारे पास ये 0 आ गया। सो मैक्सिमम वैल्यू किस पॉइंट पे है? तो इसी क्रिटिकल पॉइंट पे मैक्सिमम वैल्यू है। द करस्पॉन्डिंग y, तो x इज इक्वल टू हमारे पास 600 है, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगा? मैक्सिमम, इसमें मैक्सिमम है इसलिए हम y इज इक्वल टू 24 माइनस 2 टाइम दिस, 2 टाइम इसी फंक्शन में पुट करना है, ये 2 टाइम दिस x की वैल्यू पुट करना है 600, so this is 1200. So the rectangular field should be 600 foot deep and 1200 foot. So x is equal to what? X is equal to हमारे पास आ गया 600 एंड y हमारे पास जो वेट है इसका ये 1200 आएगा, तब ये एरिया मैक्सिमम एरिया कवर करेगा। सो इसका मतलब ये है कि ये हमारे पास 600 आ जाएगा और ये 1200 आ जाएगा, तब ये जो एरिया हमारे पास कवर होगा वो मैक्सिमम एरिया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह इससे रिलेटेड और एग्जांपल भी पढ़ेंगे, इसकी एप्लीकेशन पढ़ेंगे कि मैक्सिमा मिनिमा और इन सारों की कन्क्यूटी, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, इन सारों की एप्लीकेशन इसको हमने यूटिलाइज करना है। ओके।